ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਪ 52 ਦੇ ਨਾਲ 52 ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ। पंजाब कांग्रेस में शामिल हुए साबका पुलिस अफसर और जवान कांग्रेस की अगली लिस्ट उत्ते कैप्टन का बयान 9 जनवरी को आएगी। अगली लिस्ट नवजोत सिंह सिद्धू ते बोले कैप्टन डिप्टी सीएम अहदे बारे नहीं हुई कोई गलबात, सिर्फ एक सीट बारे हुई सी गल। मिस्टर या मिसिस सिद्धू कोई भी लड़े चोण। उधर कैप्टन ने एक बार मुड़ तो केजरीवाल नूं उन्हां दे खिलाफ मैदान च नितरन दी दित्ती चुनौती। We've had 2 CEC sittings हो गया, कितने डिस्प्यूट्स राइज होंदियां ने ऑन सीट, किते कोई इशू राइज हो जाता है। सो द लास्ट लिस्ट जी होनी है ये 9 तारीख को आएगी एंड बाय 10th वी शुड हैव इट इन द फील्ड। There is a congressman, we will put a congressman. Where no congressman can win the seat, then we will bring people and put them. Let me tell you, we have nearly 28 Akalis who joined us. There are nearly 11 AAP people who joined us. There are nearly 6 BJP people who joined us. Now that's a large figure. We can't give everybody the seats, but इन्हां दे विचों जिथे कोई बंदा साडा नहीं जित रहा उन्हां दे विच असीं फिट करांगे। Now I think first I would like to invite we have with us a delegation of our police officers, retired, our NGOs and our jawans. ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਆਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ, ਜਵਾਨਸ ਐਂਡ NGOs ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ। I don't know what ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ ਹਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। All that I was told that the decision with ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਸੀਟ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਲੜਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਈਫ ਸੀਟ ਐਂਡ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਵੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਜੂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਊਗਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ, ਅਗਰ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੀਟ ਉਹ ਚੁਣੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੂ। शिवलाल डोडा वालों जेल विच चोण मीटिंग करने के खिलाफ कांग्रेस के आगू सुनील जाखड़ ने चोण कमिशन नूं कीती शिकायत। चोण मीटिंग दीयां तस्वीरां कीतियां जारी, कहा जेल सुपरिटेंडेंट नहीं बल्कि सियासी आगू दे घर हुई सी मीटिंग। कैप्टन ने कहा नाभा जेल ब्रेक कांड वर्गे हालात वजारत विच आउण ते होवेगी जांच। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ परसों रेड दे विच पकड़िया गया। फाजिलका जेल के अंदर जिहड़े 3.25 ਲੱਖ रुपये पकड़े गए है वो नवी करंसी सी। लोग जिहड़े गरीब है 4-4 हज़ार रुपये वास्ते लाइनां 'च लगे खड़े है ते उत्थे जेल के अंदर ईवन आफ्टर नाभा जेल ब्रेक 3.25 ਲੱਖ रुपये रिश्वत के जिहड़े पकड़े गए हैं। टॉप इट ऑल ईवन है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की जी धारा बनती है, ईवन दैट हैज़ नॉट बीन एडिड एंड का भी DC और जेल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस से हो रही सी। डज इट लुक लाइक ऑफिस टू यू सर? देयर इज अ बेड इन हियर। आ जिहड़ा तुहाडे सामने है देयर इज अ बेड, देयर इज अ एयर कंडीशनर, देयर इज अ हीटर, अ रेडिएटर इनसाइड द जेल। एक दे विच तुसीं देखोगे ਇਹ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ। nobody has noticed of there is carpet on the floor। तब साडा इल्ज़ाम जिहड़ा अज मैं कह के आया, दिस इज नॉट द जेल सुपरिटेंडेंट्स ऑफिस, अकाली दल's ऑफिस ऑपरेटिंग आउट ऑफ द जेल एंड these are proven by the pictures। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जिस तरह नाल फाजिलका जेल विच मीटिंग दौरान मुलजम फड़े गए ने, उसी तरह नाभा जेल ब्रेक कांड मिलीभुगत की वजह करके जेल ब्रेक कांड नूं अंजाम दिता गया सी। कैप्टन ने कहा कि उन्हां दी सरकार आउण ते इस पूरे मामले की जांच होएगी। उधर सुचा सिंह छोटेपुर ने इस मामले की जांच करवाउण की गल कही है। अकाली दल ने कहा कि कानून तो ऊपर कुछ नहीं, मामले 'च होवेगी सख्त कार्रवाई।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਹੋਇਆ 100% ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਵੀ quite rightly had taken this issue up with the election commission and I'm very happy ਕਿ election commission ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ to conduct these elections so that ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। FIR ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ। ਸਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਊ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਡਰ ਬੇਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ कार्यकर्ता काम करेगा। पंजाब में बीजेपी एकजुट है। सब नेता ये कहा जाए, कमल शर्मा जो हैं, जो पूर्व प्रधान हैं, वो सब आपके साथ हैं। कि हमारे बीच में कहीं मतभेद हो सकता है। मतभेद जो है पति पत्नी, भाई भाई, बहन भाई, माँ बाप के साथ हो सकता है जी। मगर हमें मन भेद है वो नहीं है, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਬਜਟ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲਣ ਨੂੰ 16 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ। ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਣਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ 'ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਮੀ 'ਚ ਟਕਰਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਬਜਟ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲਣ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਗਾਹ।
जम्मू कश्मीर के बडगाम च दहशतगर्द मुजफ्फर अहमद मुठभेड़ च ढेर दहशतगर्दी जथेबंदी अल बद्र दे नाल जुड़िया सी दहशतगर्द लश्कर दे लई भी कर चुका सी काम। हाँ, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं मानता हूँ कि ये अल बदर ग्रुप जो कि यहाँ पे अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था और रिक्रूटिंग में लगा था, उसकी एक वी कैन से दैट वी हैव ब्रोकन द बैकबोन ऑफ अल बदर ग्रुप बाय डूइंग दिस क्लिनिकल एंड क्लीन ऑपरेशन। कोलकटाले च मुलजम साबका कांग्रेसी MP नवीद जिंदल नूं सुप्रीम कोर्ट तो वड्डा झटका। कांग्रेस विधायक करण दलाल ने हरियाणा सरकार ते लगाए 800 करोड़ रुपए के घोटाले के गंभीर इल्जाम किया। एनीमल हसबेंडरी विभाग के पैसे की सरकार के मंत्रियों ने की वंदरबांट। खेतीबाड़ी मंत्री OP धनखड़ ने इल्जामां तो किया इनकार। तरनतारन के कस्बा जबल च प्रेम संबंधां दे चलदिआं एक दलित नौजवान नूं अपनी जान गवाणी पई। मृतक नौजवान के परिवार का इल्जाम है कि कुड़ी दे भरावां ने नौजवान नूं कुट-कुट के मौत के घाट उतार दिता। उधर पुलिस ने कुड़ी दे 3 भरावां सने 4 खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। समराला च किसानों ने नोटबंदी ते सरकार खिलाफ सड़कों ते सब्जियां दुध ते अंडे सुट के प्रदर्शन किया। किसानों ने चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे जाम करके अपना रोस दर्ज करवाया। किसानों का कहना है कि नोटबंदी कारण उन्होंने फसलों की लागत के हिसाब मुताबक मुल बहुत ही घट मिल रहा है। चंडीगढ़ कांग्रेस ने नोटबंदी ते केंद्र सरकार खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी दियां बछाड़ा का इस्तेमाल भी किया, जिस कई वर्कर जख्मी हो गए ते कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत दे विच भी लिया। चंडीगढ़ साहित्य अकादमी ਅਤੇ अदब फाउंडेशन ਦੇ ਵੱਲੋਂ चिल्ड्रन लिटरेचर फैसटिवल का प्रबंध किया जा रहा है। यह फेस्ट दीक्षांत ग्लोबल स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ 27 जनवरी तो 28 जनवरी तक चलेगा। इस फैसटिवल का मकसद बच्चों की पढ़न ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरस्ट ਵਧਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ। रोहतक च सामने आया कुड़ी की बेरहमी नाल कतल का मामला। चिता सड़े जाण तो ठीक पहला पुलिस ने कब्जे च लई लाश। कुड़ी ने 21 दिसंबर को परिवार के खिलाफ जाके किया सी विआह। पुलिस नूं है हॉरर किलिंग का शक, हिरासत च परिवार। हमें सूचना मिली थी कि एक महिला का मर्डर हो गया है, तो मामले का जब हमने पता किया तो पता चला कि एक कपल ने इंटरकास्ट मैरिज की थी और लड़के ने शक के आधार पर हमें अभी बताया कि शायद उस लड़की के परिवार वालों ने उसकी हत्या कर दी। बालक बच्चेदार हो गया, अपना भी पता होगा कास्ट का, तो भाई थोड़ा अपनी कास्ट में हो गया तो और भी बढ़िया है। किस कर ने थोड़ा वो कराया था। किसने मारा इनको? उसके पापा ने धमकाई थी। अच्छा, फिर उसने वो कराया। क्या किया? कि पापा ने कराया, हम तो बाहर काट दिए। मन्ने पर मन्ने फिल्म अदाकार ओमपुरी का 66 वरियां की उम्र के विच निधन। अज सवेरे दिल का दौरा पैण दे नाल होया देहांत। हरियाणा के अंबाला विच होया से मशहूर अदाकार ओमपुरी का जन्म। ओमपुरी ने जितया से 1 दर्जन तो ज्यादा अवार्ड। भारत सरकार ने 1990 विच पद्मश्री के नाल नवाजिया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जताया दुख। बॉलीवुड विच भी सोग दी लहर। हमारे ताल्लुकात फिल्मों से भी ज़्यादा आपसी थे। वो बड़े प्यार से हमको छोटे भैया कहते थे हमेशा। बहुत मिस करेंगे हम लोग उनको। भगवान उन्हें शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे। ऐसे समय में हम कलाकार तो सभी मिस करेंगे उनको। और फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बहुत अच्छे हिंदुस्तान के ही नहीं पूरी विश्व के कलाकारों में उनका नाम लिया जाता था। गॉड ब्लेस हिज सोल। मैं तो उनके साथ 84 से जुड़ा हुआ था। जब मैं शहर में आया तब से हम जुड़े हुए हैं। मजमा जब उन्होंने शुरू किया था, मजमा में उनके साथ थे। उनके साथ जितनी मिस्टर बेनेगल की फिल्में सब मैंने उनके साथ की हैं। और ही वाज
ग्रेट मैन एंड इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। हमारे हार्ट अटैक, आप समझ सकते हैं प्रेशर्स तो कितने हैं, आप जानते हैं, सारा मीडिया भी जानता है, बट इट्स वेरी सैड न्यूज़। बेंगलुरु तो दिल्ली आ रहे स्पाइस जेट के जहाज की दिल्ली के एमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से करवानी पई लैंडिंग, एयरपोर्ट के सूत्रों के हवाले तो खबर। पाकिस्तान ने वाघा सरहद से 219 मछेरे भारत हवाले किए ने। सूत्रों अनुसार ये सारे मछेरे मालर जेल तो रिहा किए गए ने। पिछले 10 दिनों पाकिस्तान ने दूसरी बार मछेरियों के समूह रिहा किया। इस तो पहला 25 दिसंबर के दिन 220 मछेरे रिहा किए गए सन। 350वें प्रकाश उत्सव परख दे विच शरीक होने तो बाद पंजाब सने वक्-वक् सूबਿਆਂ तो पटना साहब पहुंची सिख संगत हुण अपने घर परतन लगी है। श्रद्धालुओं के चेहरे ते साफ खुशी नजर आ रही है। गुरु घर दे विच मत्था टेकण दा मौका पा गया। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा खास बात है कि सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी थी यहाँ से। हम गुरु गोबिंद सिंह जी का ये 350 साल सारी उम्र याद रखेंगे। और गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पुरब तो बाद सिख संगत अपने घर परतन लगे ने। ज़्यादातर लोग ट्रेनों के जरिए अपने शहरों परत रहे हैं। अजिहे विच कोई लापरवाही ना होवे, इस दे लई खुद रेल SP जितेंद्र मिश्रा पटना जंक्शन उत्ते मोर्चा संभाले हुए। धोनी के कप्तानी छड्डण तो बाद वनडे ते 2020 के कप्तान बने विराट कोहली। ऐलानी गई टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ वनडे ते 2020 के लिए युवराज सिंह की टीम इंडिया च वापसी। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे ते 3 2020 मुकाबले खेडेगी टीम इंडिया। हिमाचल च बर्फबारी नाल मौसम खुशगवार। शिमला विच बर्फबारी होई शुरू, बर्फबारी का मजा लै रहे ने सैलानी। मनाली ने सैलानियों का मोहिया मन। जोरदार बर्फबारी दे नाल वादी हुई सफेद, तां चंबा दे विच भी बर्फबारी, बागवाना दे खिड़े चेहरे। चंबा च बर्फबारी 1 तो 2 फुट तक हो चुकी है बर्फबारी। कई इलाकों च माइनस तो हेठां डिग्गिया टेंपरेचर। बर्फीली हवावां ने वधाईयां मुश्किलां। उपमंडल पागी वादी दा दुनिया दे नाल कटिया संपर्क। उत्साहत बागवाना ने शुरू की सेबां दी गुदाई अते प्रूनिंग दा काम।